So that means I offer my respects to teacher who has given me knowledge. Gyan Anjana Shalakaya. Okay, I was in Om Agyan Timirandasya. I was in knowledge. Okay, and my teacher, he gave me knowledge with the torchlight of knowledge. Chakshurun militam yena. Chakshu, my eyes became enlightened. Chakshurun militam yena. Tasmai Shri Guruve Namah. To such master or such teacher, I offer my obeisances. That is the meaning of the prayer. So it invokes auspiciousness. As such, a huge prayer list is there. We should pray first before starting. But anyhow, we'll start with small prayers. Okay. So first of all, I'd like to say that all of you, those who came early, I would like to thank all of you for coming early for the class. That shows the enthusiasm and your seriousness also. So we'll start with a small revision of yesterday's first chapter, first of all. So in yesterday's chapter, we saw that Arjun was in the war of Kurukshetra along with Krishna, and then he chose Krishna to be with him. Okay, actually, what happened is, before the war, Arjun and Duryodhan, uh, both of them, they were to decide whom they want. Krishna said, either I will fight, or second option he gave, that my Sena, Narayani Sena, okay, will be there. So you have to choose any one of them, both of them, because both of you are my relatives, Krishna said. So I cannot say no to anybody. So he said, I have two options, either choose me or choose my Sena, okay, my army. But then Krishna chose what? So Krishna chose Arjun chose Krishna, okay, and then Duryodhan, he had to take Narayani Sena, okay, he took Narayani Sena. He was very happy also. Yes, Raj, Hare Krishna. Okay, so what happened is, at the end of the chapter, we saw that Arjun actually went in front of Krishna, took Arjun in front of the Kaurav Sena, and who were there in front? So there were two people. One was our master commander Dronacharya, and another was Bhishma. So when he took in front of them, at that time Arjun felt all these things, and he said, I will not fight. He said to Krishna, Krishna, I am feeling that my mouth is drying up, okay? My hairs are standing, and then I am shivering. All these things he told. Then Krishna did not speak anything in the second chapter, in the first chapter. Kuch bhi nahi bola Krishna. He did not speak even one word. So actually, this second chapter is the chapter when Krishna will actually speak. In first chapter, only Arjun spoke. Okay, Arjun spoke about his problem. Arjun spoke, I am not feeling like fighting, I am feeling compassion for the people. And he also told how, in the first chapter, he also told how, if I kill them, then whom I will enjoy with. Okay, they are all my family members and friends. So if I kill them, then whom I will enjoy. Then at the same time, Arjun gave this option, that he said, if I kill all of them, I will get sinful reaction for that. Then he also told about, we have seen, if you remember, as a leader, he said, what will happen to the whole generation of these people? Aage generation ko kya hoga? Society ko kya hoga? And at the end, indecision. Arjun said, I am not able to take decision. What should I do? Okay. So those of you who might have tried reading this chapter from Bhagavad Gita, कौन सा chapter? Second chapter. ठीक है. तो second chapter में ये अलग अलग जगह पे आंसर से अर्जुन के क्वेश्चंस के. सो ऑल ऑफ यू कैन, इफ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन इफ यू आर रीडिंग भगवद गीता डेली, तो आपको ये स्लाइड से क्या हुआ, आपको कंटेक्स्ट पता चलेगा. तो कृष्णा कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन से वर्स में दे रहे हैं. सो अर्जुन का फर्स्ट क्वेश्चन जो था, या फिर फर्स्ट प्रॉब्लम था, कंपैशन, उसका आंसर कहाँ दिया, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट का कहाँ दिया, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन का कहाँ दिया, ये सब इस स्लाइड में है. अब सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू हम देखेंगे. तो सेकंड चैप्टर इज एज सच वेरी बिग चैप्टर. ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है. और सेकंड चैप्टर एक व्हाट वी से, द नेम ऑफ द चैप्टर वी कैन से इट इज समरी ऑफ होल भगवद गीता. ठीक है, तो ये क्या है, डिस्कशन है. एज मैंने पहले ही बताया आपको, ये कन्वर्सेशन है. किसके बीच में? इट इज कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन. एंड इन दैट कन्वर्सेशन समटाइम्स we speak some point, and later on we will describe that point. Like for example, if there is some war, some fight which had happened, and you are asking me, or I will ask you, ठीक है, what happened there? So you will say, अरे वो उधर से दो लोग आए थे, इधर से दो लोग आए थे, वो गैंग आया था, ये गैंग आया था, ये, they all fought together, है ना. Later on then I will ask, वो कौन सा गैंग आया था? Then you will tell about that gang, correct?
then I'll ask wo kaun sa gang tha, you will tell about that gang, correct? So similarly here in the second chapter, immediately Krishna answers all the questions of Arjun. At the same time, he tells the gist of whole Bhagavad Gita initially only. Then later on, he describes in other chapters one after another as Arjun asks more clarification on certain terms. Then each and every topic is described further in other chapters. So that's why those of you who tried reading Bhagavad Gita on their own, people become very jumbled when they read second chapter, because second chapter में बहुत सारे concepts है, समझता नहीं ये concept यहाँ पे कैसे आ गया, इसके बाद क्या है. You may understand meaning of the verse, translation से समझ जाएगा, but to link the concepts together, why this point is here, why Krishna told this point here, ठीक है, that we may not understand on our own. That's why we require to hear. That is very important. So the acronym for this chapter is GITA, Gita. So these acronyms actually आप अगर ये लिख के रखते हैं, so you'll be able to remember these acronyms. आपको आप ध्यान में रख सकते हैं, आप पूरा चैप्टर का एक रिवीजन भी कर सकते हैं अगर आपको याद रहा तो. So G for गुरु, ठीक है, गुरु और टीचर हम बोलेंगे. I for identity, हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है वो, that is I. Then T is two dharmas, हमारे दो धर्म, what things we should do actually. And A is Ananda, higher taste. Krishna tells about higher taste. So one by one we'll see. Just a second. Okay. So G for Guru, what does that mean? That Arjun accepts Krishna, okay, as Guru in the first few verses, okay. So why Arjun had to accept Krishna in first few verses as Guru? Then only Krishna speaks. Why is it so? Because till the time we are not humble, till that time knowledge will not come, knowledge will not enter inside us. If we are very humble, if we are what we say, if we accept that I am not able to solve the problem on my own, please remember one statement, that problems cannot be solved at the same level when they were at what they were created. ठीक है, प्रॉब्लम उसी लेवल पे सॉल्व नहीं होते जिस लेवल पे वो क्रिएट होते. ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हायर लेवल और हायर गाइडेंस लगता है in our life, and that may be anybody, even a small child can also guide, but guidance has to be from outside. We ourselves cannot actually help ourselves in all the conditions in our life. That is not possible. So Arjun accepts Krishna as teacher. ठीक है, so that is very important verse 2.7. कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नाम्. So very simple verse. अगर किसी को संस्कृत का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल. कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस. ठीक है, माइजरली, कार्पण्य माइजरली वीकनेस. ठीक है, खुद के बारे में सोचते हैं हम माइजर बन जाते कभी कभी. सो अर्जुन बोल रहे कि बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस, ठीक है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम पृच्छामि, आई एम आस्किंग यू, पृच्छामि त्वाम, आई एम आस्किंग यू धर्म सम्मूढ़ चेता, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज सर्टन. ठीक है, यू टेल मी अबाउट दैट, व्हाट आई शुड डू. यश्रेयशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, व्हाटएवर आई नो दैट, व्हाटएवर इज गुड फॉर मी दैट यू टेल मी. ठीक है, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वम प्रपन्नम. नाउ कृष्णा, आई एम नॉट योर फ्रेंड, नाउ आई एम योर डिसाइपल, आई एम योर शिष्य, a soul surrender unto you, please instruct me. और यहाँ से चालू हो रही है भगवत गीता. यहाँ पे अर्जुन ने पहली बार क्या बोल दिया, बोला कि अभी आप मुझे इंस्ट्रक्ट करो. ठीक है, अर्जुन has started, the first step Arjun has taken, and that is what we should actually do when we want guidance, when we want knowledge, when we approach a spiritual authority. Then how we should approach? So we should approach in a humble mood, and like this, like Arjun has approached. Okay, we have to approach like that. Then the knowledge will be able to, we will able to absorb the knowledge with which that authority gives. So what is surrender? Okay, like Arjun surrendered here. What is surrender? Surrender means first is eager to learn. One should be very eager to learn. One should be humble and acknowledging weaknesses. See, as many of your students,
we may feel that learn means हम स्कूल कॉलेज के concepts के बारे में बोलेंगे, ठीक है, जिसमें क्या है, जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी और ये क्या कहते हैं हायर स्टडीज वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब सब्जेक्ट्स होंगे और हम उस एंगल से सोच रहे हैं. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द spiritual knowledge. We are talking about spiritual knowledge, and for spiritual knowledge we have to show our eagerness. We have to acknowledge our weakness, because spiritual knowledge is not just a temporary thing which you will gain and next day you can earn some money out of it. No, it is not like that. It is a lifetime thing, okay, for us. So we have to have bona fide teacher to guide us through the challenges of life, okay. We should have these desires to get a bona fide teacher who can guide us throughout our life. That is actually required for a person who is on the spiritual path, ठीक है. प्री कंडीशन क्या होना चाहिए फॉर सरेंडर? व्हाट इज द प्री कंडीशन? इट टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट फेल्यूर एंड वंस ओन वीकनेस. आप अगर इफ यू गो टू स्पिरिचुअल टीचर और आप एकदम ऐसे खड़े रह के बोलते हैं, हाँ बताओ मुझे, मेरे लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम चालू है, then he may not guide you and he will not feel like guiding you. We require humility, and there should be courage also to accept weakness, that these are my bad habits, I am not able to surrender, I am not able to understand, please guide me. Like that is like both things are required, courage and humility. But unless we accept it, we cannot succeed. Both, it is difficult, but we have to accept. Success has many fathers, but failure is an orphan. Very wonderful statement. सक्सेस के बहुत फादर है, बट फेल्यूर कौन है? ऑर्फन है. यानी इफ यू डोंट टेक गाइडेंस 100% इट इज लाइक फेल्यूर, विल गेट फेल्यूर इन आवर लाइफ. सक्सेस को फादर होता ही है. सो गाइडेंस वी हैव टू टेक. समटाइम्स नाउअडेज पीपल, देयर आर सो मेनी सेल्फ हेल्प बुक्स. सेल्फ हेल्प, खुद को हेल्प करो खुद से by reading those books. We go to YouTube and we find so many motivational speakers and various people guiding, and we try to gain some understanding from all of them. But till the time we don't have a bona fide teacher with us, okay, to whom spiritual teacher to whom we are connected, our understanding will be very superficial. We will not be able to enter deep into spiritual life. Second thing, we would like we want to advance but will not be able to advance, because knowledge सिर्फ यहाँ तक रहता है. It remains in brain, it will not go till your heart. So many times I tell this, by hearing these Bhagavad Gita sessions, please don't expect only information, okay, but we have to transform also. Transformation is also required. So these sessions, they should transform your life, not just give you information, okay. Now what कृष्णा इज टेलिंग टू अर्जुन, ठीक है, अर्जुन ने बोला अब ये मुझे प्रॉब्लम है. उसके बाद कृष्णा क्या बोल रहे हैं? कृष्णा इज टेलिंग हु आर यू, ठीक है, कृष्णा इज टेलिंग हु आर यू, एंड देन कृष्णा इज डिस्क्राइबिंग यू आर नॉट बॉडी बट यू आर व्हाट, यू आर सोल. आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है, ठीक है. आप जैसे कोई ड्राइवर है, ड्राइवर होता है और कार होता है. जैसे हमने एक सेशन लिया था पहले, है ना, कार होता है, कार के अंदर ड्राइवर होता है. ड्राइवर के बिना कार नहीं चल सकती, है ना. वैसे ही ये बॉडी है, बॉडी के अंदर सोल है, आत्मा है, और आत्मा के बिना बॉडी वर्क नहीं करेगी. तो कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन, यू आर नॉट बॉडी बट यू आर सोल. सी बॉडी इज अ डेड मैटर, ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ अर्थ, एयर, फायर, वाटर, ईथर, ये सब चीजों से बना हुआ डेड मैटर है बॉडी. डेड मैटर एक्चुअली कैन नॉट थिंक ऑन इटसेल्फ, वर्क ऑन इटसेल्फ, but there is atma, there is soul inside this body which will make this body work. Very normal thing. But because we haven't heard about this from our teachers or scientific people, that's why we may not believe sometimes. But it is very simple to accept that, to understand that this body is not all in all, there has to be some soul. So in previous classes we have seen many examples of that. That is reincarnation के बहुत सारे proof है, ठीक है. Many children, they remember their past lives, ठीक है. Then common sense also is there that if some person dies, कोई मर जाता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको? अरे ये हमें छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के चले गए, and people cry, correct. So हमें छोड़ के कहाँ चले गए, that is question, ठीक है. हमें छोड़ के चले गए, correct है, कहाँ चले गए? The body is there, पूरा बॉडी वहीं पे, तो कौन छोड़ के चला गया? बॉडी वहीं पे है, उसके हेयर्स, बॉडी का हर पार्ट, सब कुछ तो वहीं पर पड़ा है, लेकिन स्टिल वी क्राई, हमें छोड़ के चले गए. सो व्हाट इज गॉन इज दैट सोल. सो दिस इज बॉडी. If soul goes away, then this body will die, and we call it as death, correct. So Krishna is answering, talking about this point to Arjun here about the soul. So Arjun might say,
Krishna, I am asking you whether I should fight or not fight. I think you didn't understand me properly. मैं क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पे? I think तुमको समझा नहीं. मैं पूछ रहा हूँ कि मैं फाइट करूँ कि नहीं करूँ, बट आप क्या बोल रहे हो कि आप बोल रहे हो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो. So कृष्णा बोलते हैं no, I understood your problem. ठीक है, I understood what you are telling, but you are not body, you are soul. अर्जुन बोलते sorry कृष्णा, I think आपको मेरा पॉइंट नहीं समझा. मैं फाइट करूँ कि नहीं करूँ, मैं वो पूछ रहा हूँ. कृष्णा क्या बोलते हैं, अरे बाबा मुझे समझ गया तुम्हारा पॉइंट, एंड आई एम गिविंग द आंसर, what to say, I am giving the solution to the root of your problem. That's why Krishna is telling about soul. ठीक है, नहीं तो कोई सोचेगा डायरेक्टली कृष्णा बोलना चाहिए ना, फाइट करो अर्जुन, खत्म. ठीक है, बट कृष्णा इज नॉट दैट काइंड ऑफ गॉड. ठीक है, ही इज नॉट जस्ट टेलिंग यू, इनसाइट नहीं कर रहे, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन जो इनसाइट करेंगे. जैसे ही कैन जस्ट इनसाइट ना, अर्जुन को क्या बोल सकते हैं, अर्जुन क्या करो, वो तुम फाइट करना ही चाहिए, मेरे लिए तुमको फाइट करना है, कसम डाल रहे हो मेरी, ऐसा बोल सकते हैं. या फिर ऐसा बोल सकते हैं, याद है क्या इन्होंने क्या किया था द्रौपदी के साथ में, याद है क्या तुमको, ऐसा बोल के भी कृष्णा क्या कर सकते हैं, इनसाइट कर सकते हैं अर्जुन को, और वो एक्साइट हो गए कि ही वुड किल. ठीक है, वो कर सकते थे फाइट, बट कृष्णा इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स रूट. एंड कृष्णा इज टेलिंग यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल. सोल के बारे में कृष्णा क्या यहाँ पर किस पॉइंट को बोल रहे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बता रहे हैं. हमारा आइडेंटिटी क्या है ये समझना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, जो क्रेजी पर्सन होता है, पागल, ठीक है, वो ऐसे ही रास्ते पे आपने देखा होगा, ऐसे कुछ भी बोलते रहता है इधर उधर, किसी को भी कुछ भी बोलते रहता है, कभी पत्थर उठा के कुछ फेंकेगा, है ना, पागल. सो व्हाई, बिकॉज ही फॉरगॉट हिज आइडेंटिटी एज सम रिस्पेक्टेबल पर्सन, जो भी सोसाइटी में वो भूल गए. ठीक है, उसने एक अलग आइडेंटिटी ले लिया, भूल गया, वो एक दूसरा आइडेंटिटी ले लिया. ठीक है, एंड ही हैज अनरियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ. सिमिलरली when we are in this like soul in this body and we think I am this body, ठीक है, I am not soul. अगर हम ऐसा सोचते हैं, हम सोल के बारे में सोचते नहीं है, देन हम क्या है, मिसप्लेस्ड आइडेंटिटी हमारा. एंड देन कृष्णा गोज ऑन डिस्क्राइबिंग, इट इज कॉल्ड एज सांख्य योग, सांख्य नॉलेज. ठीक है, सांख्य नॉलेज एक्चुअली ये सांख्य नॉलेज कैसा होता है, आप एलिमेंट्स को आप ये क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो एक एक करके, आप बॉडी के पार्ट्स को स्टडी कर रहे हो, बोल रहे हो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर सोल क्या है, सोल के बारे में, ऐसे आप हर चीज को स्टडी करते हो टेक्निकल, जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वैदिक सांख्य नॉलेज. तो सांख्य नॉलेज के हिसाब से कृष्ण एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को कि किस तरह से सोल के बारे में बता रहे हैं. सो कृष्ण इज टेलिंग इन दिस वर्स, वेरी वेरी नाइस वर्स 2.13, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते. Krishna is telling, as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. So देखो यहाँ पर ये फोटो बताई इस आदमी का, ठीक है, दिस पर्सन, इसी पर्सन का ये बचपन का, जब वो 5 साल का था तब का फोटो है, 25 साल का था तब का फोटो है, 50 साल का था तब का फोटो है, नाउ ही इज अप्रोक्सीमेटली 80 और 90 इयर्स ओल्ड तब का फोटो. ठीक है, सेम. तो एक ही फोटो में क्या मिल रहा है, वो बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं इतने सालों में, इतने ईयर्स में, ऑल ऑफ देम आर विजिबल इन दिस वन पिक्चर ओनली. ठीक है, सो बॉडी में चेंज हुआ है, बॉडी चेंजेस, व्हाट इज द कॉमन थिंग. ठीक है, कितना चेंज है वो बॉडी में, करेक्ट, but what is the common thing? Common thing is the soul, which is passing from various stages of this life. So Krishna is saying the same thing, boyhood to youth to old age, soul क्या करता है, पास करता है, और फिर बॉय है, यूथ है, फिर ओल्ड है, ये खत्म हो गया, ओल्ड के बाद डेथ आ गया, खत्म, डेथ. अब डेथ के बाद में, सो दिस साइकिल विल रिपीट. ठीक है, दिस इज बर्थ, यूथ, ओल्ड एज और डिसीज. ठीक है, ये लाइन से कंटिन्यू रहेंगे, ये साइकिल क्या होगी, ये रिपीट होगी. वी शुड अंडरस्टैंड दैट. सम पीपल दे डोंट बिलीव इन नेक्स्ट लाइफ, बोलते हैं नेक्स्ट लाइफ नहीं है, बट इफ यू एक्चुअली सी हमारा बॉडी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ना, खत्म हो रहा है बॉडी, और बॉडी खत्म होने के बाद क्या होता है, बॉडी में से सोल निकल जाता है, बॉडी डाई हो जाता है. अब वो सोल का क्या होगा, इट हैज टू टेक अनदर बॉडी. इट इज क्वाइट लाइक कॉमन और नॉर्मल दैट आप आपके घर से उतरे हो तो आप कहाँ पे गए हो, आप रोड पे गए हो, करेक्ट, गार्डन में गए हो, रोड पे गए हो आप, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना घर से उतरा और गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा. सो उतरा और वो नए घर में चले गया, नए गार्डन में चले गया, कहीं और चला गया. सिमिलरली द सोल passes from one body to another, and Krishna is telling a sober person is not bewildered by such a change.
जो सोबर पर्सन है वो ऐसे चेंज से बिविल्डर नहीं होगा. So Krishna is telling about that. So Krishna is telling, ये जो लोग, you are thinking that you will kill them, but you are not killing the soul. Soul cannot be killed. आप body को kill करे but soul नहीं kill कर सकते आप. Okay, and this is the composition of myself. ठीक है, according to Bhagavad Gita. Bhagavad Gita says that we are not just composed of external body. ठीक है, यहाँ पे 3 बताए, 1, ये 1, 2 और 3. हमारा बॉडी कंसिस्ट ऑफ ऑल 3 थिंग्स. ये तीनों का कंपोजिशन है हमारा बॉडी. क्या है? सो दिस 1 इज द ग्रॉस बॉडी व्हिच इज मेड फ्रॉम पंच महाभूत, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर. इट इज मेड अप ऑफ दिस 5 थिंग्स. जो ग्रॉस बॉडी है, जो आप ये देख पा रहे हो बाहर से, ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ दिस 5 थिंग्स. फिर आप सबको सोल के बारे में भी हमने बता दिया, दैट इज सच्चिदानंद पार्ट. ठीक है, इटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज है. ठीक है, ऑलवेज ब्लिसफुल है, हैप्पी है. ठीक है, सो ये सोल का जो नेचर, सोल है, बॉडी है, ये 2 चीज तो हमें पता है. अब बीच में ये चीज कई लोगों को पता नहीं होती, ये है द सटल बॉडी. सटल बॉडी भी होती है. सटल बॉडी इज माइंड, एक फॉल्स ईगो एंड इंटेलिजेंस. हमारा जो इंटेलिजेंस होता है, जो नॉलेज हम लोग लेते हैं ना, वो जाके इंटेलिजेंस में स्टोर होता है. ब्रेन एक हार्डवेयर है सिर्फ. ठीक है, ब्रेन इज एक हार्डवेयर है, सटल बॉडी इज सॉफ्टवेयर. ठीक है, माइंड होता है और फॉल्स ईगो होता है. तो ये डिटेल्स आगे फॉल्स ईगो के और आगे हम जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन माइंड के बारे में भी 6 चैप्टर में और डिटेल देखेंगे. तो आगे भगवत गीता में बहुत कुछ हमें देखना है, एक चीज आगे हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बस सटल बॉडी आप याद रखना है. तो ये सटल बॉडी के अंदर सारे आपके जो डिजायर्स है, ठीक है, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के जो सारे डिजायर्स है, जो सारे हैंकरिंग्स है, जो सारे आपके क्या बोल सकते हैं उनको, एक्यूमुलेटेड टेंडेंसीज है. ठीक है, ये सब वहां पे सटल बॉडी में स्टोर रहते हैं. ठीक है, सो ग्रॉस बॉडी इट इज सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ डेथ. हम मर जाते हैं तो क्या खत्म होता है? ये ग्रॉस बॉडी खत्म हो जाता है ना, इट विल नॉट बी एबल टू वर्क. बट द सटल बॉडी इट कैरीज ऑन फ्रॉम वन लाइफ टू अनदर. ठीक है, एक लाइफ से दूसरा लाइफ, दूसरे लाइफ से तीसरे लाइफ, तीसरे लाइफ से चौथा लाइफ, ऐसे सटल बॉडी के साथ सोल हर अगले जन्म में जाता है. ठीक है, तो you may ask what is the proof, correct? Nowadays people want many proofs, so I will give you proof. ठीक है, example, listen carefully. आप देखो, 2 twins है. ठीक है, I don't know all of you have some relatives twins or not, but anybody has any relative who 2 twins है? ऐसा कोई relative है आपके घर में कोई, या आजू बाजू? Nobody. Okay, so इफ यू सी सम ट्विंस, आप देख सकते हैं ये दोनों जेनेटिक कॉम्बिनेशन दोनों का सेम है. ठीक है, एक ही मदर से आए हैं. ओके, समबडी हैज, ओके, विवेक जी एंड दिनेश जी. ठीक है, आपका है ओमकार. ओके, आपका भी. ओके, सो अगर आप देखेंगे वो 2 लोगों को, ठीक है, उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम है, दिखने में भी बहुत सेम है. ठीक है, एक ही मदर से आए. और अगर साइंटिफिकली देखेंगे आप, तो क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियो 2 में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, एक ही एम्ब्रियो 2 में डिवाइड हो जाता है और 2 ट्विंस होते हैं. ये होमोजाइगस ट्विंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं. तो 2 ट्विंस हो जाते हैं, तो वो दोनों इक्वल दिखते हैं, दोनों मेल या दोनों फीमेल होते हैं. ऐसे ट्विंस की बात कर रहा हूं मैं. एक लड़का एक लड़की वाला, वो थोड़ा अलग कंसेप्ट है. सो दोनों मेल या दोनों फीमेल वाले, दे लुक एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम है. बट आप क्या देखेंगे, दोनों के जो लाइकिंग्स है वो अलग अलग रहेंगे. ठीक है, एक को क्या अच्छा लगेगा, एक को स्वीट अच्छा लगेगा, और एक को क्या अच्छा लगेगा, एक को अच्छा लगेगा तीखा, या बहुत सारे अलग अलग चीजें. तो ये हम बोलेंगे, यहाँ पे क्या दिखता है हमें, देयर आर 2 डिफरेंट सोल्स. दूसरा एग्जांपल देता हूँ. आप सबका, हमारे पर्सनल लाइफ का भी एग्जांपल है. हमें देखिए, बचपन से ही हम देखते, कोई बच्चा है, वो बच्चा चाइल्ड है, उसे कोई बचपन से कुछ लाइकिंग्स होते हैं. किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है, तो किसी को गेम्स खेलने अच्छा नहीं लगता है. किसी को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, तो किसी को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है. कोई बचपन से ही बहुत गुस्सैल होता है, छोटा बच्चा बचपन से ही गुस्सैल है, और कोई बचपन से ही बहुत शांत होता है. ये सब क्वालिटीज उनको आए कैसे? सो दीज आर ऑल इम्प्रेशंस ऑफ पास्ट लाइफ. पिछले लाइफ का इंप्रेशन है सब कुछ. तो ये सब पिछले लाइफ से कैरी हो रहा है इस लाइफ में. कोई लोगों को फोबिया होता है, डर होता है, पानी का डर, गन का डर. ठीक है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि पास्ट लाइफ में वैसा मरा है वो आदमी, पानी के अंदर मरा है, डूब के मरा है, या किसी ने गन से मारा है. तो ये सब इंप्रेशंस नेक्स्ट लाइफ में आ रहे हैं. तो कोई तो चीज है जो इस बॉडी से अगले बॉडी में जा रही है विथ सोल. तो दैट इज अवर सटल बॉडी विच हैज ऑल दिस इंप्रेशंस. ये इंप्रेशन के साथ वो सटल बॉडी
अगले इसमें जा रहे हैं, ठीक है। सो कृष्णा टेल्स ये सोल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है, तो उसको कृष्णा कैसे डिस्क्राइब करते हैं? कृष्णा बोलते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि। ही सेज दैट इट्स लाइक एक क्लॉथ पहना आपने, फिर निकाल दिया, फिर दूसरा पहन लिया। वन यू गिव अप ओल्ड शर्ट एंड टेक न्यू वन। सोल के लिए इट इज एज सिंपल एज दिस। एक शर्ट निकाला, दूसरा शर्ट पहन लिया। सो हमारा पहला बॉडी कोई और था, अब ये नया बॉडी, इस बॉडी में सोल है। अब ये बॉडी भी ओल्ड होता है, इसका एक टाइमिंग होता है इतने साल तक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पास्ट कर्मास। एंड नेक्स्ट इसके बाद इसको नया बॉडी मिलेगा। सो आई एम गोइंग इनटू डीप लिटिल बिट। मैं कुछ टॉपिक्स ले रहा हूँ जो कि आपको अभी कोई एकदम न्यू होंगे, जिनको कर्मा वगैरह सब नहीं पता होगा, जो आगे और देखेंगे हम लोग, ठीक है। आई मे यूज सर्टेन टर्म्स, बट ये आगे भी है और डिटेल में, ठीक है। देन कृष्णा टेल्स अबाउट हाउ सोल इज इंडिस्ट्रक्टिबल। सोल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें है ना वैदिक स्क्रिप्चर्स में, तो वो मेन इन्फॉर्मेशन हमको भगवत गीता से मिलता है। कृष्णा बताते हैं, तो कृष्णा सेज नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तोपि न शोषति मारुत। कृष्णा इज टेलिंग the soul can never be cut into pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. इसका मतलब आप आर्टिफिशियली बाहर से मटेरियल किसी भी चीज से सोल को आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते, आप उसको किल नहीं कर सकते। और इतने सारे कैरेक्टर है सोल के, कृष्ण इज टेलिंग इटर्नल है, अनबॉर्न है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, इमेजरेबल है, कैनॉट बी कट, कैनॉट बी बर्न, ड्राइड और वेट। सोल इज इनविजिबल एंड इनकंसीवेबल। आप बोलोगे यू में से आई विल ट्राई विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप में देखता हूँ, ठीक है, बट आप उसको देख भी नहीं सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज इनविजिबल, इनकंसीवेबल। आप उसको कंसीव करने के लिए, बिकॉज वो मैटर नहीं है ना। मैटर वाली आंखों से देखने के लिए अर्थ एयर फायर वाटर वाले जो आंखें हैं, इनसे क्या दिख सकता है? अर्थ एयर फायर वाटर इधर दिख सकता है, बट सोल नहीं दिख सकता। नाउ देयर आर घोस्ट एंड स्पिरिट्स, व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी देम, करेक्ट? क्योंकि उनका अर्थ एयर फायर वाटर वाला जो बॉडी है, वो बॉडी नहीं है अभी, ठीक है। दे डाई, पर्सन डाइज, उसका बाहर वाला बॉडी वहीं पे रह गया, एंड व्हाट इज रिमेनिंग नाउ इज द सोल विद सटल बॉडी, ठीक है, दैट इज रिमेनिंग, ठीक है। सो वी कैन नॉट सी एक्सटर्नल। अगर आपको अर्थ एयर फायर वाटर इथर नहीं है, वो छोड़ के हम कुछ देख नहीं सकते, हमारे आंखें देख नहीं सकती, तो इट कैन नॉट बी, इट इज इनविजिबल, बट यस वी कैन परसीव इट, वी कैन परसीव इट बाय कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस है किसी चीज के अंदर, हम बोल सकते हैं इसमें सोल है, ठीक है। हमारे बॉडी में कॉन्शियसनेस है, अगर आपको कोई मारेगा, आपको पेन हो रहा है, यानी सोल है, ठीक है, पेन हो रहा है यानी सोल है। अगर मैं किसी पत्थर को मारूंगा तो पत्थर, नो पेन, नो, उसको पेन नहीं है, नो पेन, नो फीलिंग्स, कुछ नहीं, बिकॉज सोल इज नॉट देयर, ठीक है। एंड मुंडक उपनिषद आल्सो सेज दैट सोल परवेड्स एंटायर बॉडी, पूरे बॉडी को परवेड करता है। एनालॉजी क्या है, एग्जांपल कैसा है? लाइक सन परवेड्स एंटायर यूनिवर्स एंड मेंटेन्स, सिमिलरली लाइट ऑफ सोल मेंटेन्स द मटेरियल बॉडी, ठीक है। सो कंक्लूजन, ये इस टॉपिक का कंक्लूजन कि स्पिरिट सोल इटर्नल है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस वन शुड नॉट बी बिविल्डर्ड बाय इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल बॉडी। बॉडी कभी भी खत्म हो सकता है, वन शुड नॉट बी बिविल्डर्ड। इफ यू हैव दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता, देन एक्चुअली वी विल बी एबल टू फेस डेथ वेरी प्रॉपर्ली। We see our relatives, they have left bodies, okay, we see many people dying, we ourselves will die one day. So we should understand the body is dying, soul is not dying. It's like you are there, okay, you are there and your relative is there, both of you are there, you are sitting in a bus, एक बस में बैठे, ठीक है, रिलेटिव नहीं, फ्रेंड है आपका, ठीक है, बस में बैठे, और ये बस आगे जा रही है, वो फ्रेंड आपका उतरा और वो दूसरी बस में जाके बैठ गया, वो आगे चला गया, आपका स्टॉप आ गया, आप उतर गए और वो फ्रेंड आगे चला गया, ऐसा समझ, दूसरे बस में बैठा आगे चला गया। So this is like this only. If somebody dies, that means we should understand soul just goes out of this body and takes another body. ये हमें समझना चाहिए। अगर हमें नहीं समझा ये चीज, तो we are very very new in spiritual life. अगर किसी पर्सन को ये नहीं पता है सोल का, that is like very what we say essential, very what we say preliminary part of spirituality, एकदम इनिशियल में। क्योंकि बॉडी के लेवल पे अगर कोई झगड़ा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम बॉडी के लेवल पे, फिर कोई बोल रहा है मैं बड़ा मैं छोटा, तू काला मैं गोरा, कास्ट सिस्टम, ये सब जो बॉडी के लेवल पे जो चीजें चालू है, ये दैट शोज दैट द पर्सन इज ऑन वेरी लो लेवल, उसको सोल के बारे में पता ही नहीं, ठीक है। जो स्पिरिचुअलिस्ट लोगों को बॉडी के लेवल पे भड़काते हैं, ठीक है, दैट मीन्स दे डोंट नो अबाउट सोल, ठीक है, सोल के बारे में नॉलेज नहीं है।
So once we understand soul, then we understand our prescribed duties. ठीक है, what we should do in our life, we should purify ourselves, we should realize the eternal self. We are going to see about that. ठीक है. Then Krishna is telling, one who takes birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. जातस्य हि ध्रुवा मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च. जिसने जन्म लिया है वो मरने वाला है, और जो मर रहा है वो अगला जन्म लेने ही वाला है. That is fixed. ठीक है. So यहाँ पर आपका जो unavoidable discharge of your duty, you should not lament. Unavoidable discharge, हमारा जो ड्यूटी होता है उसका डिस्चार्ज कैसा होता है? अनअवॉइडेबल है. सो वो लोगों को जाके जाके अभी झापड़ मारना चाहिए. कौन से लोगों को? जो क्या बोलते हैं, अरे भगवत गीता पढ़ा, और भगवत गीता पढ़ के क्या करो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो. भगवत गीता पढ़ के क्या करो? घर बार छोड़ दो, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार. नहीं. भगवत गीता वैसा नहीं बोलता. भगवत गीता नेवर आस्क्स यू टू गिव अप योर ड्यूटी. भगवत गीता ऐसा नहीं बोलता सब घर बार छोड़ दो. भगवत गीता नेवर सेज लाइक दैट. कृष्णा क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कृष्णा क्या बोल रहे हैं? आपका ड्यूटी करना पड़ेगा आपको. कृष्ण इज टेलिंग अनअवॉइडेबल डिस्चार्ज ऑफ अ ड्यूटी आपको करना पड़ेगा. सो टू सच काइंड ऑफ पीपल वी शुड से, कृष्णा ने अर्जुन को क्या बोला? वहां पे फाइट करने को बोला, या बोला तुम बैठ जाओ इधर ही, या फिर ये सब छोड़ के चले जाओ? कृष्णा आस्क्ड अर्जुन टू फाइट. करेक्ट. सो भगवत गीता विल एक्चुअली help you to become better, or we can say best version of yourself. भगवत गीता विल नेवर आस्क यू टू गिव अप योर ड्यूटी. आपका जो जॉब है, आपका जो वर्क है, ये सब छोड़ना नहीं है. ठीक है, दैट डजंट भगवत, बट आपका जो ड्यूटी है वो किसी भी सिचुएशन में करना. ठीक है, भगवत गीता टेल्स अबाउट दैट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोग मिस कर देते. पता नहीं लोग कहाँ से लाते हैं अपने अपने मन से. ठीक है, बोलते भगवत गीता पढ़ने पे वैराग्य आ जाएगा और सब छोड़ दोगे. अरे वैराग्य आने को आप हमारा हार्ट कितना काला है. सो मेनी attachments we have, so many things. Bhagavad Gita does not tell about giving up everything. It tells to accept duties. And now two duties it tells to do. It doesn't just tell you to do the bodily duties, it also tells to you to do duties on soul platform. ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें है, एक है बॉडी और दूसरा है सोल. ये दो चीजें है. सटल बॉडी बॉडी में ही पकड़ लेते हैं हम लोग. ठीक है, सो बॉडी और सोल ये दो चीजें हैं, हमें पता चल गई. ओके, अब बॉडी के ड्यूटीज है कुछ, उनको बोलते हैं स्वधर्म, और सोल के ड्यूटीज है उनको बोलते हैं नित्य धर्म. ठीक है, 99.99% of the population is only doing स्वधर्मा. That also not properly, but they are doing. ठीक है, सबको स्वधर्मा के बारे में पता है. स्वधर्म क्या है? स्वधर्मा इज the duties related to body. ये हमें करना है. कृष्णा is telling about that. ठीक है, so body के duties क्या है? To take care of our family, to work, job, then to give something to society, help people. ये सब क्या हो गया? बॉडी के लेवल पे हो गया, है ना. किसी आदमी को आप हेल्प कर रहे हैं, ये सब स्वधर्म हो गया बॉडी के लेवल पे. But what are the duties of soul? That also we should understand. So there is second dharma, that is nitya dharma. ये अगर आपको समझ गया, ये essential understanding है भगवत गीता का, कि when we become complete in our life, when we do both of these dharmas properly. One is swadharma and second is nitya dharma. Nitya dharma is the duty of soul. सोल का ड्यूटी है, सोल ने क्या करना चाहिए वो ड्यूटी. ठीक है, सो ड्यूटी टुवर्ड्स द बॉडी क्या है? दैट इज टेकिंग केयर ऑफ फैमिली एंड अवर जॉब. ठीक है, दैट इज ड्यूटी टुवर्ड्स आवर फैमिली. एंड ड्यूटी टुवर्ड्स सोल क्या है? इट इज चैंटिंग कृष्णा's नेम, रीडिंग भगवत गीता. दैट इज आवर कनेक्शन, टू एस्टैब्लिश आवर कनेक्शन विद गॉड. You know, yoga means what? You know, yoga means to join. योग. ठीक है, योग. So Bhagavad Gita is telling us to do a duty of soul, that is our nitya dharma, that is connection with God. So how soul can connect with God? ठीक है, so soul can connect with God with some process. We have to follow certain process in our life. That is what we are feeding to soul. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कार और ड्राइवर का. करेक्ट. सो कार के लिए आपको फ्यूल डालना पड़ता है. दैट फ्यूल इज पेट्रोल, बट यू कैन नॉट गिव दैट फ्यूल टू ड्राइवर ऑल्सो. ड्राइवर को भी पेट्रोल पिलाएंगे तो ड्राइवर एनर्जी आएगा क्या उसमें? ड्राइवर विल डाई. करेक्ट. सो व्हाट इज द पेट्रोल फॉर ड्राइवर? यस, करेक्ट प्रतीक. मेडिटेशन इज नित्य धर्म. करेक्ट. सो व्हाट इज द पेट्रोल फॉर ड्राइवर? ड्राइवर के लिए फूड है पेट्रोल. ठीक है, चपाती, सब्जी, दाल, राइस, ये सब क्या है? ड्राइवर के लिए फूड है. सो ये दोनों का अलग अलग है. कार का पेट्रोल है, ड्राइवर का फूड है. सिमिलरली हमारे बॉडी की ड्यूटीज है, मगर जो सोल के ड्यूटीज है वो हमें समझना चाहिए. सोल का ड्यूटी क्या है? टू मेडिटेट ऑन गॉड, टू प्यूरिफाई oneself, टू गो to get understanding of one's relation with God.
वो अंडरस्टैंड होना चाहिए. दैट मीन्स हमें जो बॉडी मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यस. सो now chanting the names of Krishna means what? So there is process in this yuga. Like there are 4 yugas. आप सबको पता है. सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड कलयुग. इस बार उल्टा हो. इस बार थोड़ा सा द्वापर और त्रेता में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. ठीक है. इस वाले युगा में क्या हुआ? त्रेता युग पहले चले गया, द्वापर युग बाद में आ गया. देयर वाज वन पर्सन हु वाज कर्स्ड. उसको कर्स मिला. उसके लिए फिर ये युगा ऊपर नीचे हो गया. ठीक है. सो पहले आता है सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता और फिर कलयुग. ऐसा आता है नॉर्मली. ठीक है. सो फॉर एवरी युगा there is a prescribed type of meditation, prescribed type of activity by which the person can attain God. ठीक है. फॉर एवरी युगा. सो फॉर सतयुगा इट वाज मेडिटेशन, और हम बोल सकते हैं ध्यान. ठीक है. ध्यान करना फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तपस्या. ठीक है. तपस्या करना वो सतयुग के लिए था. सो लोगों का उम्र भी ज्यादा था एंड दे वुड बी एबल टू डू लॉन्ग लॉन्ग तपस्या एट दैट टाइम. उसके बाद त्रेता युग का अलग था. त्रेता युग का था बड़े बड़े यज्ञ करना. ठीक है. द्वापर युग का था डीटी वर्शिप करना, बड़े बड़े. तो बड़े बड़े मंदिर और मूर्ति ये सब करते थे. बट कलयुग के लिए it is very simple process is given in shastras, that is chanting the names of God. That is very important, and that's why you will see in every spiritual path, किसी भी religion में हर जगह पे आपको दिखेगा कि there is chanting the names of God which is very much focused. If you have read Quran, you will find. If you have read Bible, you will find there also. If you have read Guru Granth Sahib, there also you will find. Everywhere it is told that one should chant name of God. Warkaris, they chant Ram Krishna Hare. ठीक है. Everywhere Christians they chant on their beads. Muslims rosary beads होते हैं Christian के पास. ठीक है. Muslims के पास भी beads होते हैं. आप पूछे, everybody, all of them. So actually chanting the name of God is the process of this Kali Yuga. ठीक है. So now there may be question, which name should I chant, which mantra should I chant. ठीक है. So I will suggest as a part of this program, I will suggest one mantra to all of you. You can try to input in your regular life, personal life, and you can see the changes. ठीक है. So the mantra I would like to introduce here to all of you is the Hare Krishna Maha Mantra. You might have heard it at many places. महाराष्ट्र में तो हर जगह पे हम बोलते हैं. महाराष्ट्र में जब ये होता है गणपतीच्या वेळेस, है ना. मराठी आई डोंट नो कितने लोग समझते हैं. तो गणपति के टाइम पे हम जब प्रेयर्स बोलते हैं, लास्ट में हम बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, है ना. दैट मंत्र, सेम मंत्र. ठीक है. सो इट शुड स्टार्ट विथ हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So this mantra, why specially I told you about this mantra? Because this mantra is the mantra for Kali Yuga. It is given in Kali Santaran Upanishad, that this mantra is the mantra which is Maha Mantra bolte isko. This is the mantra for Kali Yuga, and what it does is it removes all the obstacles of Kali Yuga. ठीक है. Kali Yuga के जो obstacles है उसको छोड़ के you can go above that, and to attain God, see personal में ये नहीं बोल रहा हूँ to get this, to get that, not for that. To attain God, this is the best mantra possible. ठीक है. That is Hare Krishna Maha Mantra. So I told you about this Hare Krishna Maha Mantra. That is like our duty of soul. Soul का duty और भी है. ठीक है. Reading scriptures, or anyway we are trying anything, we try to realize God. ठीक है. So my spiritual master, my teacher, when he wanted to, he was actually 16-year old. ठीक है. And he's from Chicago, from another country. When he actually wanted to search for God, what he did was he said in Chicago udhar kya milne wala hai na. So he searched, he went to different countries in search of God, and then he came to India. When he came to India, he went to Himalayas. If you would like to read about his story, I will suggest you one book, that is Journey Home. Arey, एक minute. If you have time, please read this book. ठीक है. Journey Home. You can read his how he got spiritual life in this world. ठीक है. कैसे he went to various yogis, he saw people flying, and बहुत सारी चीजें he saw, and he started searching what is actual spirituality, and then he started reading. He came in contact with devotees and many things like that. So he came to Vrindavan at last. He found Krishna, found what we say the spiritual path. All these things is described in that book. He says. So for him it was that journey totally. Okay. But at the end what we say is that his all process was something like going towards God, some one step towards God, and that is what makes a person different from other people.
most of the people in this world, they are, even though they are doing their work very nicely, but they just want money in their life. They just want their own profit. They cannot think about anything other than their own profit, their own thing. Mera khud, मैं. They cannot think anything out of this box. But those who know this knowledge of soul, they जो don't just take care of the body cage. जैसे ये औरत है ना, ये केज का केयर ले रही है. They don't just take care of the cage, they take care of the bird also. ये जो bird है अंदर, इसका भी केयर लेना बहुत जरूरी है. अगर कोई बर्ड का केयर नहीं लेता है, सिर्फ बॉडी का केयर ले रहा है, he is on superficial platform. In no time, in future he is going to die, and what will happen is he has to take another birth. कोई मैंने उसमें ये नहीं, and birth is dependent on the past karmas. ठीक है. So future chapters में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. अगला थर्ड चैप्टर is related to karma. ठीक है. सो उसमें हम लोग और कर्म के बारे में डिस्कस करेंगे. पास्ट कर्मा, प्रीवियस फ्यूचर कर्मा, कर्म किस कैसे जनरेट होते हैं, ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है. कल के चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं. लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दिस इज द मोस्ट टफ पार्ट. ठीक है. और ये चैप्टर, ये टॉपिक अगर हमने अभी नहीं भी डिस्कस किया, दैट इज ऑल्सो ओके. व्हाई? बिकॉज दिस इज टेकन इन फ्यूचर अगेन, अगले चैप्टर्स में है. ठीक है. बट आई वुड लाइक टू टेक दिस टू वर्सेस. ठीक है. 2.62 and 2.63 वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये बताते हैं किस तरह से कृष्ण इज टेलिंग हाउ अ सोल विच इज विद इन द बॉडी. ठीक है. एम्बॉडीड सोल बोला जाता है उसको. एम्बॉडीड सोल हाउ ग्लाइड्स डाउन. ठीक है. कैसे वो ग्लाइड डाउन होता है, नीचे जाता है, कृष्ण बता रहे. सो क्या होता है, सबसे पहले लेकिन नॉर्मल हम बोलेंगे कोई अच्छा आदमी है, कैसे वो बिगड़ता है. ठीक है. कैसे वो अच्छे से बुरा कैसे बन जाता है, स्टार्ट किधर से होता है, या कोई भी बैड हैबिट है वो हमें कैसे ओवरकम कर लेते हैं. सो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट चीज है. कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पर कि ध्यायतो विषयान पुंसा, दैट इज द वर्स. कृष्ण इज टेलिंग कि सेंसेस है ना, जो हमारे सेंसेस, जैसे आईज है, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर्स, ये 5 सेंसेस है. तो दिस 5 सेंसेस, ये सेंस ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट है ना, आईज के लिए सेंस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तो आईज के लिए सेंस ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे ये हो गया. ठीक है. दिस इज द सेंस ऑब्जेक्ट फॉर आईज. देन एनीथिंग कैन बी द सेंस ऑब्जेक्ट. ठीक है. वो सेंस ऑब्जेक्ट को आईज देखेंगे. ठीक है. और हम देखेंगे, देखने के बाद क्या किया, कंटेम्पलेट किया उसके ऊपर, सोचा. ठीक है. सोचने से क्या हो गया, अटैचमेंट आ जाता है. अब बोलोगे कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ. सपोज आपको डायबिटीज है. ठीक है. डायबिटीज है, डॉक्टर ने बोला है स्वीट तू खाएगा मर जाएगा. ठीक है. अब आप बोले नहीं खाऊंगा स्वीट. ठीक है. आप रास्ते से जा रहे हैं और बाजू में रास्ते में ये साइड में एक स्वीट शॉप में एकदम सामने ही पूरा रसगुल्ला, गुलाब जामुन और जलेबियां, गरम गरम जलेबियां तल रहा है, वो डाल रहा है उधर गरम गरम, ऐसे चाशनी में डुबा के निकाल रहा है, सामने रख रहा है वहां पर. अब आपने अगर वहां पे देखा, ठीक है, एक बार देखा, फिर से अगर कंट्रोल कर लिया तो ठीक है, यही एक ऑप्शन हमारे पास होता है. ठीक है. बट हमने अगर देखा और देखते रहे कुछ देर तक, तो खत्म. फिर क्या हो जाता है, अटैचमेंट डेवलप हो जाता है. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड अस, बट कृष्ण इज टेलिंग व्हाट हैपेंस. इमीडिएटली अटैचमेंट डेवलप हो जाता है. हमारा पूरा सटल बॉडी जो है, हमारे सेंसेस जो है, वो एक्टिव हो जाते हैं, इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं. और वो ऐसे जैसे छोटा बच्चा जैसे रोता है ना, वैसे वो रोना चालू करते, क्राई, दे स्टार्टेड क्राइंग. किसके सामने, माइंड के सामने. तो अभी क्या कर दिया हमने, इनिशिएट कर दिया प्रोसेस को. जैसे वो ये होता है ना इंजीनियरिंग में, कोई क्या कहते हैं उसको, सर्किट होता है, इनिशिएट कर दिया, स्टार्ट कर दिया. तो वैसे इनिशिएट हो गया अभी रिएक्शन. सो सेंसेस क्राई कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, दे आर टेलिंग टू माइंड बोल रहे हैं अटैचमेंट. फिर माइंड क्या करता है, माइंड के अंदर क्या क्या हो जाता है, तो लस्ट डेवलप होता है, लस्ट. ठीक है. अटैचमेंट बढ़ जाता है और माइंड के अंदर लस्ट डेवलप होता है. सो दिस लस्ट एक्चुअली रिसाइड्स इन माइंड, इट रिसाइड्स इन सेंसेस एंड इट रिसाइड्स इन बुद्धि, दैट इज इंटेलिजेंस. ठीक है. तीनों लेवल पे लस्ट रिसाइड करता है. थर्ड चैप्टर में और देखेंगे हम इसके बारे में. सो ये लस्ट डेवलप होता है. लस्ट क्या होता है, लस्ट इज लाइक, इट इज समथिंग क्रेविंग फॉर सम ऑब्जेक्ट, ये मुझे चाहिए ही. ठीक है. वो ऑब्जेक्ट के पीछे क्रेव करना, ये मुझे चाहिए ही. लस्ट का स्पेशल मोस्ट एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है, लाइक अ मैन क्रेविंग फॉर अ वुमन.
लस्ट डेवलप हो जाता है. लाइक अ बॉय, ही इज लुकिंग एट सम वुमन एंड देन स्लोली फर्स्ट लुक इज नॉर्मल लुक, ठीक है, बट लेटर ऑन व्हेन ही सीज फॉर सम मोर टाइम, देन व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स अटैचमेंट एंड फिर लस्ट पर चला जाता है, ठीक है. सो हम मैन वुमन का एग्जांपल नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में अगर माइंड इतना गंदा है, माइंड विल अगेन ब्रिंग थॉट्स एंड वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, एंड कुछ लोग हम में से कहीं और चले जाएंगे ठीक है, कुछ और सोचना चालू कर देंगे. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस हियर. सो मैं आई विल नॉट टेक दैट एग्जांपल, वी विल टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ डायबिटिक पर्सन, ठीक है. तो उसने क्या को देखा, उसने स्वीट को देखा, ठीक है, स्वीट को देखा और लस्ट डेवलप हो गया. अभी लस्ट डेवलप हुआ, फिर ही विल बी फोर्स्ड टू गो देयर, ठीक है. यू में से नहीं नहीं नहीं, बट दैट इज व्हाट इज फोर्स, ठीक है, दैट इज व्हाट इज अवर अंदर का जो बॉडी है ना, हमारे अंदर माइंड इंटेलिजेंस जो है, ये हमें वर्क करवाता है फोर्सफुल. लाइक फॉर एग्जांपल, इवन दो यू आर टॉकिंग टू समबडी, आपको पता है फोन को हाथ नहीं लगाना है, फिर भी हमारा हाथ ऐसे फोन की तरफ जाता है ना. सो दैट इज समथिंग इन आवर सेल्फ्स व्हिच मेक्स अस डू दैट, है ना. तो वैसे माइंड लस्ट की तरफ, यस, माइंड लस्ट ही हो जाता है और वो सेंस ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, और फिर वो डायबिटिक पर्सन जा रहा है उधर, डायबिटिक पर्सन जाके उस चीज को खाने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है. अब क्या हो गया, वहां पे देखा वो शॉप का ओनर कौन है, तो शॉप का ओनर निकला इसका भाई या रिलेटिव, और उसको पता है आपको डायबिटीज है. आप क्या करेंगे, वो बोलेगा अरे नहीं नहीं नहीं, मत खा, नहीं तेरे को नहीं दूंगा, नहीं नहीं. आप बोलोगे अरे मुझे खाना है, मुझे चाहिए, ये ले 500 के रुपए ले, 500 रुपए, 10 रुपए की स्वीट, ये 500 रुपए ले, लेकिन मुझे दे जल्दी से, मुझे खाना है, मेरी इच्छा हो रही है, खाना है यार. आजकल बोलते हैं लोग, मेरी इच्छा हो गई, बस इच्छा हो गई, मैं कुछ भी करूंगा. तो उनको ये नहीं समझता है कि ये गेम हो रहा है अंदर पूरा, ठीक है. फिर अगर उसको नहीं दिया, आपका रिलेटिव निकला और वो बोला नहीं, सो लस्ट क्या हो गया, अनफुलफिल्ड हो गया, एंड देन इट बिकम्स क्रोधा, ठीक है. कृष्ण इज टेलिंग, सो इट स्टार्ट्स विद ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम, लस्ट इज कॉल्ड काम, एंड कामात क्रोध भिजायते, एंगर इज क्रोध, क्रोध, कामात क्रोध भिजायते, ठीक है. यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, ये रिएक्शन और भी आगे है, ठीक है. अब क्रोध के बाद क्या होता है, टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, प्लीज फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध के बाद क्या होता है, बिविल्डरमेंट, समझता नहीं है क्या करूं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिविल्डरमेंट. क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, वो चीज नहीं मिलती जो चाहिए. फिर क्या होता है, इंटेलिजेंस लॉस हो जाता है पर्सन का. क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम है, इंटेलिजेंस चला गया, स्मृति विभ्रमात सॉरी बिविल्डरमेंट, स्मृति विभ्रमात, स्मृति विभ्रमात बुद्धि नाशो, एंड बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ठीक है. तो उसके बाद बुद्धि नाश होता है, दैट इज इंटेलिजेंस, एंड प्रणश्यति, उसके बाद खत्म, और उसके बाद दैट पर्सन कैन डू एनीथिंग, उसका इंटेलिजेंस स्विच ऑफ हो जाता है, इंटेलिजेंस का बटन स्विच ऑफ हो गया, ठीक है. इंटेलिजेंस में सारी चीजें स्टोर्ड है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट इंटेलिजेंस में स्टोर्ड है. लेकिन इंटेलिजेंस स्विच ऑफ हो जाता है जिस पर्सन का, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है. ऐसा आदमी सोशल क्राइम करता है, सुसाइड करता है, रेप करता है. आई वॉज रीडिंग इन अ न्यूज पेपर, 2 साल के बच्चे पे रेप हो गया है, 2 साल की बच्ची, ठीक है, उस पर रेप हुआ है एंड शी डाइड. आप सोच सकते हैं 2 साल की बच्ची पे रेप कोई कर सकता है, हाउ समबडी कैन डू दैट. बट उसके पीछे ये प्रोसेस है पूरा, ये प्रोसेस है सब. दैट्स व्हाई अ पर्सन कैन डू एनीथिंग अगर उसका इंटेलिजेंस लॉस हो गया तो. सो कृष्णा इज टेलिंग ये लोअर टेस्ट है ये सब. अगर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वी विल गो लाइक दिस, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. देन कृष्णा क्या बोल रहे हैं, तो ये सोल है, आप बोलोगे ये सोल को मैं, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है, कोई बोलेगा ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं वो डायबिटिक पर्सन को क्या करता हूँ, दूर रखता हूँ स्वीट शॉप से, है ना. करेक्ट है, ये सोल्यूशन हम लोग बोलेंगे, मगर ये स्टॉप गैप सोल्यूशन है. कल फिर से उसको दिख गया स्वीट तो क्या करोगे, है ना. सो कृष्ण यहाँ पे क्या पॉइंट बोल रहे हैं अर्जुन को, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसोवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम, बहुत इंपॉर्टेंट, परम दृष्ट्वा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हायर टेस्ट. सो यहाँ पे somebody asked question, because is asking question also, तो बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो how we can give up our lower taste,
that is by higher taste. We should get higher taste. तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं, आप सेंसेस को रेस्ट्रिक्ट भी कर लो, लेकिन स्टिल द टेस्ट फॉर सेंस एंजॉयमेंट रिमेन्स. आप कितना भी दूर कर लो, लेकिन आप उसके बारे में सोचोगे ही. आप बोलोगे मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोच रहा, मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोच रहा, मैं, बट आप उस लड़की के बारे में सोच रहे हो. ठीक है. कोई बोलेगा मैं उस स्वीट के बारे में नहीं सोच रहा, मैं उस स्वीट के, मैं रसगुल्ले के बारे में नहीं सोच रहा, मैं गुलाब जामुन के बारे में नहीं सोच रहा, मैं जलेबी के बारे में नहीं सोच रहा. ये बोल के हम उसके बारे में सोच रहे. ठीक है. सो हम बोलेंगे मैं नहीं सोच रहा हूँ, बट एक्चुअली वी आर थिंकिंग अबाउट इट. ठीक है. सो कृष्णा क्या बोल रहे हैं, हाउ यू कैन गिव अप दैट, यू शुड गेट, यू रिक्वायर हायर टेस्ट. देन आपका कॉन्शियसनेस फिक्स होगा. आपको हायर टेस्ट चाहिए. विदाउट हायर टेस्ट यू कैन नॉट डू. आप सेंस एंजॉयमेंट को छोड़ नहीं सकते. सेंसेस को जो चाहिए, सेंसेस उसके लिए रोते हैं. वो बोलेंगे मुझे चाहिए, मुझे चाहिए. यू कैन नॉट गिव इट अप. सेंसेस बोलते हैं, बट हाउ यू कैन गिव इट अप, you require higher taste. And what is that higher taste? That higher taste is in the spiritual life. ठीक है. स्पिरिचुअल लाइफ में वो हायर टेस्ट हमें मिलता है. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. नाउ हाउ टू एक्सप्लेन दिस इंपॉर्टेंस टू पीपल हु से किधर है भगवान, मेरे सामने लाओ, भगवान है तो मेरे सामने लाओ. ऐसे झापड़ देना चाहिए. उसको बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी को बुलाए तो भी नरेंद्र मोदी तुम्हारे सामने आने वाला है क्या? अगर कोई सामने बोलता है किधर है भगवान, भगवान है तो मेरे सामने लाओ, तो नरेंद्र मोदी है तो मेरे सामने लाओ. अगर नहीं आए तो नरेंद्र मोदी है ही नहीं. हम अगर चौक में जाके ऐसा बोलेंगे, नरेंद्र मोदी विल कम, ही विल से अरे बाबा पूरा इंडिया है, इतने प्रॉब्लम चाह रहे हो, कोरोना का प्रॉब्लम है, क्यों ये सब है ना. So similarly people say like this. Some people say why we need spirituality. क्यों चाहिए spirituality? ये करो, वो करो, वो करो, अपने जीवन में सफल होके बताओ, ये सब ये सब. उनको ये नहीं पता कि हम खुद से हार जाते, तब हमें स्पिरिचुअल लाइफ का रिक्वायरमेंट होता है. ठीक है. हाउ टू कंट्रोल आवर सेंसेस, we don't know that, and for controlling our senses we require spiritual life. That is the importance of spiritual life which people don't know. So कृष्णा यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सोल्यूशन. कृष्णा इज टेलिंग फर्स्ट थिंग, यहाँ पे सेंसेस, एक तो हायर टेस्ट बोला है. ठीक है. उसके साथ में कुछ मैकेनिकल चीज भी बोला है. कृष्णा ने क्या बोला है, सो एक कछुए का एग्जांपल देके बोला है. क्या? विड्रॉ, वन शुड विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो जैसे मैंने बोला वो डायबिटीज वाला जो पर्सन है उसको आपने क्या किया, दूर कर दिया. दैट इज द फर्स्ट स्टेप, बट दैट इज नॉट ऑल इन ऑल. ठीक है. तो जैसे टॉर्टोइज क्या कर रहा है, टॉर्टोइज अपने सेंसेस अंदर ले रहा है ना. आप उस डायग्राम में, इस पिक्चर में देख सकते हैं. यहाँ पर जो पिक्चर है ना, ये देखो. टॉर्टोइज क्या करता है, जब कोई डेंजरस सिचुएशन है तो उस समय वो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को अंदर ले लेता है, और जब सिचुएशन एकदम नॉर्मल आ जाती है तो क्या करता है, अपने सर को बाहर निकालता है, अपने हाथ पैर को बाहर निकालता है. ठीक है. यू कैन सी how he is coming out. Similarly, it is said a yogi should control his senses like that. इतना कंट्रोल होना चाहिए खुद के ऊपर कि अभी अगर मैं बोलूं, अभी my senses I want to control. Like for example, there is sweet here, I don't want to see it, I don't want to contemplate on it. So at that time we can control our senses for some time. So that is like control of senses one should have, like a tortoise. Krishna gives example. So whenever actually in our life we are not able to control our senses, हम चाहकर भी आंखें हमारी कंट्रोल नहीं हो रही है, जा रही है कहीं पर, so हमें tortoise की तरफ फोर्सफुली उसको अंदर लेना पड़ेगा. ठीक है. एंड देन हायर टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो कैसे, सो कृष्णा बोल रहे हैं जो पर्सन है जिसको हायर टेस्ट मिलता है, उसका कॉन्शियसनेस कैसे हो जाता है. तो उसका कॉन्शियसनेस कैसे हो जाता है, जैसे पानी गिर रहा है वैसे कितने भी डिजायर है, डिजायर रिवर जैसे एंटर कर रहे हैं. जैसे ओशियन के अंदर रिवर घुस जाती है, मगर ओशियन क्या करता है, ओशियन उतना ही रहता है. ओशियन कभी भी अपना जो लिमिट्स है उसको क्रॉस नहीं करता है. क्या बोलते हैं, रेनी सीजन में रिवर्स बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं ओशियन में. ठीक है. कभी कभी समर में बहुत कम पानी जाता है, ओशियन स्टेबल रहता है, वैसे ही रहता है स्टिल. करेक्ट. तो वैसे ही वन हु कंट्रोल्स हिज सेंसेस, ठीक है, देन वो क्या होता है, ही कैन अलोन अचीव हैप्पीनेस, नॉट द मैन हु ट्राइज टू सेटिस्फाई सच डिजायर्स. ठीक है. कभी कभी हम बोलेंगे चल ठीक है 2 मिठाई खा लिया तो क्या हो रहा है ना, 2 मिठाई खा लूंगा, इच्छा हो गई 2 मिठाई खा लूंगा. बट कृष्णा क्या बोल रहे हैं, आप अगर आज मिठाई खा लेंगे तो कल फिर से मिठाई खाने का इच्छा होगा, कल फिर से खाएंगे थोड़ा सा तो परसों फिर से, ये इच्छा कंटिन्यू रहेगा ऐसा ही, बट उसको स्टॉप करना है.
Krishna is telling stop it at some place. ठीक है? If you can stop it, it will be difficult initially, but with the help of higher taste, with the help of spiritual life, you can stop it for certain time, and then once you not it today, कल जो आपका desire है वो थोड़ा कम हो जाएगा. Desire रहेगा, कम हो जाएगा. फिर आप कल फिर से स्वीट नहीं खाओगे. उसके बाद थर्ड डे, फिफ्थ डे तक क्या होता है, वो डिजायर कम कम होता जाता है, कम कम होता जाता है. इट गोज डाउन. So it starts with first step of stopping, controlling your senses, and you have to go on doing that thing again and again for a long time. Then what happens is you become fixed up in your consciousness. Okay, and you can achieve peace. Achieve peace means what? भले ही फिर आपके सामने कोई ऐसे लाके रख दे मिठाई, still you will not get attached to it. ठीक है, आपको उतना अफेक्ट नहीं करेगा वो. बट स्टिल, ठीक है, इफ यू डोंट हैव हायर टेस्ट, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है आपके लाइफ में, यू डोंट प्रैक्टिस एनीथिंग इन योर लाइफ स्पिरिचुअल, फिर क्या होगा, अगेन यू मे गेट अटैच्ड. दैट इज अगेन डेंजरस. दैट इज 6th चैप्टर में कृष्णा टेल्स अबाउट माइंड, देयर ही टेल्स अबाउट दिस थिंग. ठीक है, 3rd चैप्टर में भी है, कल के चैप्टर में भी हम लोग देखने वाले उसके बारे में. ओके, सो विद दिस द टॉपिक इज फिनिश्ड, चैप्टर इज फिनिश्ड. I will just revise what we saw. So first we saw today, that is the Guru. How Guru, we have to accept Guru, we have to surrender. ठीक है, सरेंडर के लिए हमें ईगर होना चाहिए और हम्बल होना चाहिए. और प्री कंडीशन क्या है, करेजियस होना चाहिए. मेरा ये गलती है, ठीक है, मुझे ये प्रॉब्लम है मेरा, वी शुड बी एबल टू एक्सेप्ट आवर प्रॉब्लम, वी हैव टू बी हम्बल, देन ओनली वी कैन अप्रोच स्पिरिचुअल अथॉरिटी. ठीक है, और वी कैन वर्शिप गॉड, और वी कैन enter into spiritual life. We have to be very humble for that. Identity के बारे में कृष्णा told about identity of self, that is soul. ठीक है, सोल के बारे में देखा, हमने देखा सोल सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी, ये 3 बॉडी से बना हुआ है हमारा बॉडी. ठीक है, ये सब देखा. मैंने आपको रीइंकार्नेशन के बारे में भी बताया. देन वी सॉ 2 धर्मास, दैट इज ड्यूटी ऑफ बॉडी एंड ड्यूटी ऑफ सोल. ये 2 धर्म हमने देखे. वन इज कॉल्ड स्वधर्म, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं नित्य धर्म. ठीक है, स्वधर्म एंड नित्य धर्म, ये 2 धर्म है. एक है बॉडी के लेवल पे और एक है सोल के लेवल पे. ये दोनों धर्म हमें करने चाहिए. सिर्फ बॉडी के लेवल के धर्म नहीं सेटिस्फाइड, वही सब कुछ नहीं है, सोल के लेवल पे भी करना चाहिए. एंड देयर आई इंट्रोड्यूस्ड ऑल ऑफ यू टू चैंटिंग ऑफ द नेम्स ऑफ गॉड. ठीक है, एंड लास्ट कृष्णा टेल्स अबाउट हायर टेस्ट, वेयर ही टेल्स हाउ वी गो ऑन टेकिंग लोअर टेस्ट. ठीक है, हम नीचे नीचे जाते हैं, और उसके लिए सोल्यूशन क्या है, हायर टेस्ट प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल ऑफ सेंसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फॉर दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड हैव एसोसिएशन ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग देयर स्पिरिचुअल लाइफ. ठीक है, ऐसे लोग जो सेंस कंट्रोल कर रहे हैं, इनका एसोसिएशन होना बहुत जरूरी है. उनके साथ रहना, उनको सुनना, उनसे व्हाट इज गाइडेंस लेना, और बीइंग विद देम, एक्चुअली दैट हेल्प्स अ लॉट. If you don't have people who are controlling our senses around us, ऐसे लोग नहीं है, then it will be very difficult to control senses. क्योंकि सब लोग क्या है, जो इच्छा है वो करने के पीछे आजकल लोग कुछ भी करते हैं. मेरी इच्छा हो गई मैं ये कर दूंगा, मेरी इच्छा हो गई मैं वो कर दूंगा, मेरी इच्छा हो गई. इच्छा के लिए लोग 20-20, 50-50 किलोमीटर दूर जाके कोई नॉनवेज फूड है या कोई फूड है वो खा के आ रहे हैं. 20-20, 50-50 किलोमीटर दूर जाते हैं. कोई लोग एक सिटी से एक दूसरे सिटी जाते हैं, कोई लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट उनका ये इच्छा ये सेंसेस के लेवल पे, सेंसेस एड़ा बना रहे. सेंसेस तो लाइफ टाइम मांगते रहेंगे. सेंसेस विल नेवर स्टॉप आस्किंग यू, दे विल ऑलवेज आस्क यू, मुझे ये चाहिए ये चाहिए. आप देख सकते हैं आपका लाइफ, अभी तक आपने कितनी बार रसगुल्ले, कितनी बार गुलाब जामुन, कितनी बार स्वीट खा लिया होगा, जो भी आपको अच्छा लगता होगा. स्वीट, या किसी को स्वीट नहीं तो चाइनीज पसंद है, जो भी पसंद है, ठीक है, वेज ठीक है, जो भी आपको पसंद है आपने कितनी बार खा लिया होगा. बट स्टिल सेंसेस आपके सेटिस्फाइड नहीं है. कल फिर से वो वही मांगेंगे. आपने फिर से दे दिया उसको, वो बोलेगा, सेंसेस बोलेगा थैंक यू, अब मैं खुश हूँ. फिर नेक्स्ट डे वो फिर से बोलेगा मुझे चाहिए. और क्योंकि आपने पहले दिन दिया है, अभी जो क्रेविंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, एंड आपके कंट्रोल में नहीं है वो. इट्स लाइक अल्कोहलिक पर्सन है, एक बार ड्रिंक करता है, पहली बार ड्रिंक किया, उस समय उसके पास डिसीजन है करना कि नहीं अगली बार, लेकिन वो बार बार कर लिया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया. अब क्या हो जाता है, हर बार वो ड्रिंक कर रहा है, तो उसका जो फ्रीडम है ना वो कम कम होता जाता है. और एक समय ऐसा आ रहा है, इतनी बार ड्रिंक कर रहा है, अभी उसको छोड़ नहीं सकता, उसका खुदा फ्रीडम ही चला गया छोड़ने का. ही कैन नॉट गिव इट अप नाउ. सो लाइक दिस इट कवर्स अस. सो टुमारोज चैप्टर आल्सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस थिंग. हम थोड़ा डिटेल और लस्ट के बारे में अगले चैप्टर में भी देखेंगे. ठीक है, सो विद दिस आई एंड दिस टॉपिक हियर.
Thank you very much. Any questions? Okay, I will just. सर Yes, बोलो. सर टाइमिंग का सर आप 7 से 8 कर सकते हैं क्या सर? Yes, मुझे वो पूछना था. Yes, I would like to ask all of you, is it possible 7 to 8 क्या सबके लिए सही है? एक ऑप्शन है 6:30 to 7:30 और दूसरा है 7 to 8. So 7 to 8 is good for all of us. सबके लिए ठीक है? Yes, sir. Okay, okay, ठीक है. So we'll have from 7 to 8. That is like perfect time. क्योंकि 7 के पहले कुछ क्लासेस होते हैं, किसी के 6:30 तक वगैरह ऐसा कुछ होगा. और 7:30 के बाद 8 के बाद में क्या होता है, खाना होता है, डिनर या फिर जो भी है. तो 7 to 8 टाइम इज परफेक्ट, क्योंकि हमें कई दिनों तक सेम टाइम रखना है. ठीक है, सो ये टाइम सबको सूटेबल होना चाहिए, इसलिए हम इसको फाइनल कर देते हैं. ओके, ठीक है. यस, एनी क्वेश्चन? यस प्रणव. सर मला काय विचारायचं होतं की इथे किती जण मराठी आहेत असं फक्त बघायचं होतं. अच्छा, कारण इथं जर जास्त जण मराठी वगैरे असतील तर. हो आहेत, येते ना मराठी. येते मित्र मराठी. मराठी येते मित्र. सर हँड रेज करा त्यांना मराठी येते. मराठी. ओके, ओके. यस, यू कॅन आस्क. फक्त तेच विचारायचं होतं का? नाही सर, जर मराठी जास्त असतील किंवा म्हणजे एकाच जर हिंदी वगैरे ज्याला मराठी कळत नसेल ना, तर आपलं कसं होतं आता सेशन पूर्ण थोडंसं इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये होतं ना. मग काय काय इंग्लिश वर्ड्स वगैरे असतात की म्हणजे मिनिंग कळत नाही त्याचा किंवा असं. ओके, जर मराठीतनं घेतले तर जास्त ते इफेक्टिव्ह राहतील असं मला वाटतं. पूर्ण ऍक्च्युअली याच्यात ना अजून काही स्टुडंट्स आहेत त्याच्यात ज्यांना जे येणार आहेत आणि ज्यांना एनीबडी देयर जिसको मराठी नहीं समझती, कोई है ऐसा? ओके, एक दो लोग है. यस सर. हाँ, यस. तो व्हाट आई विल डू, मैं हिंदी में बोलूंगा ज्यादा तो, और इंग्लिश के कुछ पॉइंट्स. ठीक है, थोड़ा थोड़ा. हाँ सर, कारण हिंदी काय समजतं. यस यस यस. हिंदी सर्वांना समजतं. ओके, ठीक आहे सर. थँक्यू. ओके, यस. How to control on lust? Okay, yes, this question I told little bit answer of this. ठीक है, इसका आंसर मैंने बताया. फर्स्ट हमें सेंसेस कंट्रोल करना पड़ेगा और हायर टेस्ट भी चाहिए. दोनों चीज इंपॉर्टेंट है. आज हमने सेंसेस कंट्रोल किए तो नेक्स्ट डे और ज्यादा डिटर्मिनेशन मिलता है सेंस कंट्रोल करने का. उसके बाद नेक्स्ट आगे और ज्यादा ऐसे. तो वी हैव टू फर्स्ट स्टेप है हमारा सेंसेस कंट्रोल करने का. तो सेंसेस कौन से है? तो आईज, नोज, ईयर्स, ये सब कंट्रोल करना पड़ेगा. तो लस्टी सॉन्ग है, कंट्रोल योर ईयर्स. लस्ट जिस चीज से डेवलप होता है, आईज कंट्रोल करो, यानी वो चीज को दूर रखो. सबसे ज्यादा आजकल कौन है प्रॉब्लम? तो दैट इज मोबाइल्स. ठीक है, मोबाइल फोन से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं. ठीक है, देन इफ देयर आर सम पर्सन which is increasing the lust, please keep some distance from them. ठीक है, you keep some distance for certain time, it reduces. That's why I told ऐसा atmosphere चाहिए हमारे आजू बाजू जो, या ऐसे लोग चाहिए who are actually trying to control their senses. बहुत इंपॉर्टेंट है. और कल के चैप्टर में और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्ड चैप्टर में. ओके, सो लेट्स स्टॉप दिस क्लास हियर, दिस सेशन. Tomorrow we'll continue with the third chapter at 7 p.m. Okay? Okay, thank you, sir. Okay, thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Great session. Yes, sir. Please put your feedback also in the chat box. Okay? In not this chat box, in WhatsApp group, so that others who are there, they may understand, okay, what things you like, and they will come from tomorrow. Thank you. Okay, thank you, sir.